Okay. Now students, tell me about what is programming language. If I ask you a question, what is a programming language? What's your answer? Okay, A Sufyan. programming language is a language which is understood by a computer. Okay, programming language is, tell me, Is a programming language is, programming language is a language which is understood by computer. okay. And how many types of programming languages? Low level, high level. Two Okay. types. Yes, Iman, tell me, what is the basic difference between low level language and high level language? Miss, a low-level language is machine-oriented language, and the high-level language is English-oriented language. Okay. Tell me which high level language is easy or machine language is easy? Tell me. Miss, easy language. Yes, Zohaib, you tell me. Zohaib, you give me the answer. मैम आई डोंट नो, क्योंकि मैम मैं जिस दिन आपने पढ़ाया था उस दिन मेरी क्लास ही नहीं हुई थी. Whose fault? Me and your. मैम है तो मेरा, लेकिन आप भी पढ़ाती रहे ना तो मैं साथ साथ सुनता रहता हूँ, तो इस तरह मेरे भी रिवाइज हो जाएगा और याद भी हो जाएगा. Now, and what is a programming language? A programming language is a set of rules that provide a way of telling a computer what operation to perform. Means programming language basically is the set of rules. Programming language based on the rule, and it provides the way to tell a computer what operation to perform. यानी means हमने कंप्यूटर को इसके थ्रू ही बताना है ना उसने क्या what function computer will perform. If programming language are not means introduced, so very difficult, बहुत difficult होता. अब now हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो यूज अ लैंग्वेज यूज करते हैं ना एक्सप्रेस करने के लिए. अगर हमें लैंग्वेजेस हम यूज ही ना करते हो तो हाउ आई एक्सप्रेस द फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जस्ट लाइक दिस, आपके पास हार्डवेयर के पार्ट्स हैं बट आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है. सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कोई वाया नहीं है, उसके लॉजिकल पार्ट्स को. फिर आप उन हार्डवेयर के पार्ट्स को वर्किंग में नहीं ला सकते, वो वर्क नहीं करेंगे. हार्डवेयर को पार्ट्स में वर्क में लाने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है. इफ यू हैविंग अ सॉफ्टवेयर बट हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी वो सॉफ्टवेयर भी आपके लिए यूजलेस है. तो both are the components of computer system, hardware and computer software. Okay, a programming language is a set of rules for communicating an algorithms. Algorithms क्या होते हैं? Step by step procedure. Means if you having any problem, you write a program, you write an algorithm. आपने उसका एल्गोरिथम राइट कर दिया. आफ्टर दैट आप वो आपके पास एक मैनुअल है, बट आपने ग्रामेटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज करते हुए कोई लैंग्वेज चूज करोगे, फिर उसके ग्रामेटिकल रूल्स को चूज करने के बाद आप एल्गोरिथम को एनकोड करने के बाद एक प्रोग्राम की फॉर्म. ठीक है? It provides बहुत नॉइस आ रहा है. basic framework
to describing computations. Basically, it provides the basic framework. Okay. What is a programming language? A programming language is a notational system for describing computation in a machine readable and human readable form. अब आप ये देखें, आपने इंस्ट्रक्शंस दी, आपने प्रोग्राम को कोड किया. After that, language translator convert this code into machine code. Means machine code की machine readable form में हो गया. हमने किस में दिया था? After that, machine जो हमें रिजल्ट देगी वो human readable form में हमारा language translator ट्रांसलेट करेगा. मीन्स वो बात आ जाती है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड. सोर्स कोड क्या होता है? आप कोई भी प्रोग्राम राइट करते हो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में. आफ्टर दैट दिस प्रोग्राम विल कन्वर्ट इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म, वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड हो जाता है. ऑब्जेक्ट कोड दोबारा उसका जो रिजल्ट होगा वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर उसको हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो जाएगी. Now have a look. What is a programming language? English is a natural language. आप हम लोग आपस में communicate जिस तरह करते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारी natural language है. It has word, symbols and grammatical rules. तो इसमें हमारे पास जो हम normal routine life में words का भी use करते हैं, फिर symbols को भी करते हैं. कुछ हम अगर आप मीन्स इंग्लिश में कुछ ग्रामर का वर्क कर रहे हो तो उसमें आपका कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं. रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपनी मीन्स अगर आप कोई टेंसेस का कर रहे हैं, या आप एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, या आप डायरेक्ट में डायरेक्ट कर रहे हो, या आप कुछ आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं वो करने का. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो हैज वर्ड्स, सिंबल्स एंड रूल्स ऑफ ग्रामर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है वो बेस कर रही है आपके पास वर्ड्स पे, सिंबल्स पे एंड रूल्स ऑफ ग्रामर. और ग्रामर पे आपको मैं एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, नॉट आर द सेम. वो सेम पर्पस और सेम सिंटैक्स की नहीं है. हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट सिंटैक्स होगा, ग्रामेटिकल. गॉट इट? एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ सिंटैक्स रूल्स. जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया. हेलो, all of you understand or not? Hello? Yes, miss. Understand? Yes, ma'am. आपको समझ आ गया? सिंटैक्स की समझ आई है, क्योंकि आगे मैंने ये वर्ड बार बार रिपीटेशन में यूज करने हैं. दिस इज द सिंटैक्स. ये सिंटैक्स है, इसको राइट करने का ये मेथड है, ये हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ये वेरिएबल को यूज करने का मेथड है. These all are the data types. मैं ये सब टर्म्स यूज करूंगी आगे. और आपको आप ऐसे कर लें अपने सिस्टम्स में, जो आपके पास सिस्टम है उनमें सी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर लें. लैंग्वेज इंस्टॉल करें सी लैंग्वेज. लेट्स सी, मैं आप देखती हूँ कि अगर मेरे पास उसका सेटअप होता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. आप सब अपने अपने सिस्टम्स में सी लैंग्वेज इंस्टॉल करें. इंस्टॉलेशन के बाद ही आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे. ओके. Why are there so many programming languages? The question. इतनी ज्यादा हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों हैं? एक ही लैंग्वेज क्यों नहीं जिसमें हम हाई लेवल लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज हो जिसमें हम सारा वर्क कर लें? Is it possible? Tell me. Hello. Hello. मैम अभी तो आपने कहा था भाई हर लैंग्वेज के अलग अलग होते हैं, कोई लैंग्वेज सेम स्टेटस की नहीं होती, तो अलग अलग और फीचर्स क्या होते रीजन हैं. हो सकती है उसके बिहाइंड? और रीजन क्या होती है? मैम अब लो लेवल में वो चीजें नहीं, अब लो लेवल लैंग्वेज में वो चीजें नहीं हो सकती. आई एम जस्ट वो आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज. चलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं. तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इतनी हमारे पास क्यों हैं जो कि उनमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं? चले एक दो हो फीचर्स अलग जाती तो हैं. ठीक नहीं था. इट्स बेटर. टेल मी, थिंक अबाउट इट ना. गिव मी द आंसर. आपके माइंड में कोई तो आंसर आता होगा इसका. मे बी यू आर राइट. Listen,
आई गिव यू द आंसर, मैं आपको एक आंसर को इसका मैम answer provide- उसको बेहतर करने के लिए अलग अलग, भाई एक में इतना हो गया वेज, मतलब अलग रास्ते, अलग आपको मतलब उन्होंने एक्सप्लेन नहीं बेहतर, करना आ रहा, माइंड में आंसर है आपके। देखें, हमारे पास कुछ एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं, रोबोटिक्स हैं, हर एक की ना फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। तो प्रोग्रामर चूज ही वो लैंग्वेज करेगा जिसमें वो प्रोग्राम करे और वो स्पेसिफिकली वो लैंग्वेज उस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के लिए ही डेवलप की गई हो। लेट्स सपोज आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना है, तो डेफिनेटली आप वो लैंग्वेज चूज करोगे जिसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सको। अगर आपने कोई गेमिंग का सॉफ्टवेयर करना है, गेम्स बनाना, उसके लिए आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होगी। गॉट इट? इफ यू वांट टू यस डेवलप अ वेबसाइट, अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट के लिए आप या तो HTML को यूज करोगे, उसके साथ CSS को यूज करोगे, और उसकी जो बैकएंड पे हमारे पास डेटाबेस वर्क कर रही होगी वो आप PHP में उसको बनाओगे। डिपेंड कर रही है ना, वेरीज कर रही है ना। जी जी, वही मैं कहना चाह रहा था, मतलब भाई मैंने अलग ये बात का आंसर आपको दिया था कि यू हैव आंसर बट यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग, आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यही बोला था। अच्छा, why does some people speak French? अब अगर आप में से एक दो हैं, आपका दिल होता है कि आपने सिर्फ फ्रेंच ही बोलनी है, लेकिन ऐसा होता है कि फ्रेंच ही कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, हम सिर्फ इंग्लिश ही बोल सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल तो नहीं है ना। अब अगर हम लोग सिर्फ उर्दू में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर उर्दू ना होती, सिर्फ इंग्लिश होती, तो प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई डिफरेंट हमारी भी जो नेचुरल लैंग्वेजेस हम डिफरेंट यूज करते हैं, वो वेरी कर रही है कि हमारी नीड्स पे डिपेंड कर रही है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव evolved over time as better way have been developed to design them. First programming language were developed in 1950s. 1950s में हमारे पास पहली जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी। Since then thousands of languages have been developed. अब तक thousands के करीब हमारे पास लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप हो चुकी हैं। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। नाउ दिस इज द आंसर, ये है ना मेरा आंसर, ये देखिए ना। अब आप ये देखें कि ये है हमारा आंसर, ये था मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चंस बोले थे ना, कहा था उसके मुताबिक ये वाला, ठीक है। अब नाउ सी हियर इज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। ये देखें, ये कोड किया हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि ऑलरेडी आपका इसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, अब आपने इस चीज को करना है। आप जब किसी भी लैंग्वेज में व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम या कोई भी सोर्स कोड राइट करते हो, उसके ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस वी राइट इन आवर नेचुरल लैंग्वेज, हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में उसको राइट करते हैं। गॉट इट? अब ये देखिए, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है जो कि C++ में राइट किया गया। अब ये एक लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। अब आप पूछेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज में तो आप 0 and 1 की बात करती हैं, लेकिन उसमें हमारे पास असेंबली लैंग्वेज भी आ जाती है। असेंबली लैंग्वेज का जो हमारे पास प्रोग्राम होता है ना, उसमें जो प्रोग्राम का कोड होता है जस्ट लाइक दिस, ये होता है कि उसमें हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स के साथ कुछ हमारे पास सिंबल्स का भी यूज होता है, कुछ नंबर्स का भी हम यूज करते हैं, जिस वजह से उसको निमोनिक कोड कहा जाता है। अब ये देखिए, ये एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड है। आप इनमें से बताएं कि कौन सा आपको ज्यादा इजी लग रहा है? मैम फर्स्ट वन हाई लेवल, उसमें तो मतलब हमारी जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है इंग्लिश, मतलब उसी में ही कहा हुआ है, तो वही इजी है सबसे। नहीं, देखिए, अगर हम बात करते हैं ना असेंबली लैंग्वेज हमारी मशीन लैंग्वेज से कौन ज्यादा याद करेगा इजी है। मैम? ये कोड कौन याद अगर करेगा? हम हाई लेवल लैंग्वेज का कंपैरिजन करें तो फिर वो डिफिकल्ट होता है।
फिर वो डिफिकल्ट। यस मैम, वही तो कह रहा हूँ ना, ये कोड कौन याद करेगा? 0 0 1 0 0 1 1 2 3। अच्छा अब देखिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिफरेंट टाइप्स की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनको हमने जनरेशन वाइज डिवाइड किया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। Okay, first of all, I'll discuss with you people about the first generation language. First generation language, machine language. हमारे पास जो first generation language है, this is all machine language. Means is operation codes such as addition or subtraction. आपको ना मैं एक और बात भी बता दूं, अगर आप मशीन लैंग्वेज में कोड राइट करते हो ना, तो जो आप हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं ना, वो आपको मशीन लैंग्वेज में डेवलप करने डिफिकल्ट है। तो हमारे पास बाइनरी कोड्स एफिशिएंट तो होगा वर्क, बट और डिफिकल्ट टू राइट, डिफिकल्ट हो जाता है। Operands that identify the data to be processed. Machine language is a machine independent as it is the only language the computer can understand. Very efficient code but very difficult to write. Efficient है but difficult to write. लेकिन उसको write करना क्या है? Difficult. ठीक है? अब सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या आ जाते हैं? समरी लैंग्वेज। समरी लैंग्वेज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड रिप्लेस बाइनरी ऑपरेशन कोड्स। सिंबॉलिक ऑपरेशन कोड्स मींस निमोनिक्स, इससे रिप्लेस हुए बाइनरी ऑपरेशन कोड्स। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो जी मिस। Yes, miss. यस मैम, समझ आ रही है। यस मिस, समझ आ रही है। क्योंकि नेक्स्ट वी आर मूव ऑन द बेसिक मींस आपका बेसिक जो आपका फ्रेमवर्क है या एनवायरनमेंट में हम लोग जाएंगे, तो दैट्स व्हाई योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर रिगार्डिंग दिस अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, assembly language program needed to be assembled for execution by the computer. Each assembly language instruction is translated into one machine language instruction. कि जो भी हमारी assembly language के instructions हैं वो ट्रांसलेट किसमें होते हैं? हमारे machine language में वो भी ट्रांसलेट। Very efficient code but and easier to write as compared to the machine code की अगर हम बात करते हैं ना, machine language के साथ कंपेयर करें। Third generation language. Third generation language is closer to English but included simple mathematical program written in, मैंने अभी आपसे बात की थी सोर्स कोड की, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम राइट करते हैं ना कोड, वो दिस इज कॉल्ड द सोर्स कोड which must be translated into machine language program called object code. उसको क्या कहा जाता है? object code. Listen students, ये हमारे मेन डिफरेंस आ जाता है सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का। Fine. What is the source code and what is the object code? Yeah, what is the right difference between source code and object code? You keep in your mind. Okay. The translation of source code to object code is accomplished by the machine language system program called a compiler. ये बात आ गई हमारी लैंग्वेज कि आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जो करता है वो क्या है? हमारा सिस्टम प्रोग्राम। मैंने आपको बताया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसकी एक टाइप है हमारे पास कंपाइलर। यहाँ तक बताएं, समझ आ गई? अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो जी मिस। Yes, यस miss. मैम, आ गई समझ। मैम यहाँ पे इंटरप्रेटर का क्यों नहीं जिक्र किया गया? कंपाइलर का क्यों किया गया सिर्फ? आगे आगे तो चलें। मैम वो सिर्फ कंपाइलर ही क्यों कह ये रहे हैं? देखें, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज कंटिन्यूड
Alternative to compilation is interpretation, which is accomplished by the system program called a interpreter. Listen, compiler and interpreter also having a difference. Compiler compile as a whole program, but interpreter compile statement by statement. Means it take time, means not as a whole वो compile नहीं करता, वो आपका statement by statement. फिर अगर आपका एक statement में error आ जाता है, पहले वो आप first of all you correct this and after that move to the next statement. But compiler as a whole program को करता है. Common third generation languages are Fortran, COBOL, C and C++ and Visual Basic. Now move on fourth generation languages. A high-level language 4GL that require fewer instructions to accomplish a task than a third generation language. Used with databases, query language, report generators, form designers, application generators. ये हमारे पास कुछ fourth generation languages हैं that are based on. इसमें हमारे पास query based languages हैं, जैसे हम लोग PHP में काम करते हैं. ये हमारे पास फ्रंट एंड पे हमारे पास जैसे किसी भी वेबसाइट पे हम HTML और CSS को कोड कर लेते हैं, और बैकएंड पे हमारे पास जो वर्क कर रही होती है वो हमारे पास जो डेटाबेस को करने के लिए जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं क्यूरी लैंग्वेज, वो हमारे पास क्या है, PHP. ओके, रिपोर्ट जनरेटर है, फॉर्म डिजाइनर्स हैं, ये भी हमारे पास, जिसमें फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम लोग मोस्टली HTML को यूज करेंगे, और हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को जनरेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं. मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे हमारे पास कोई आपने डिक्शनरी बनानी करनी है, कोई आपने गेमिंग का बनाना है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज चूज कर रहे हो, जो कि उसको आपको बेटर वे में आप उसमें कोड कर सकते हैं. ओके, हियर इज अ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, फंक्शनल है, इसमें लिप्स आ जाती है, स्कीम आ जाती है, SML. बेटा ये आपकी वो लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में ये मैं आपको वैसे आपको कह सकते हैं एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अबाउट द लैंग्वेजेस, ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसके बारे में. मोर ओवर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो मैं वहां तक तो कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बट ये मैं आपका बेसिक कुछ पॉइंट्स है वो जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. लॉजिक में हमारे पास प्रोलॉग है, बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक है, रूल और कॉन्स्ट्रेंट. हेलो जी मिस. Yes, miss. Yes, miss. वो आगे कितना टाइम रहता है? ओके, रूल्स और मिस 6 मिनट रहते हैं बस. बेस्ड. अच्छा, बियॉन्ड द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज of no clear definition at present, natural language program generally can be interpreted and executed by the computer with no other action by the user than stating their questions. Limited capabilities as at listen. Listen, students. Nowadays, always. Okay, if you have any query, so query give me questions. No, ma'am. No? No, ma'am. Okay. मिस Yes.